فرصت کے لمحات ہے نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی ہے: لولاک لما خلقت الدنیا، یہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ فرماتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت اور وجہ تخلیق کائنات۔ ماہ ربیع الاول فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے کی مبارک سعادتوں میں ہم کریں گے تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذات مبارکہ، ختم نبوت اور جشن ولادت کے متعلق سوالات ہوں گے ہمارے اور جوابات آپ کے۔ دلوں کو منور کرنے کے لیے نہ صرف فرصت کے لمحات بلکہ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم رہے ہیں آپ کے لیے فرصت کے لمحات عاشقان رسول کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں فرصت کے لمحات عاشقان رسول کے ساتھ اسپیشل ربیع الشریف کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہے۔ اس میں معلوم کرتے ہیں اسلام بھائی سے، آپ یہ بتائیے گا کہ جشن ولادت کا مطلب کیا ہے؟ جشن میلادت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، تو ان کی جو آمد کا دن ہے اس کو جشن ولادت کہتے ہیں۔ تو اس مہینے کے خصوصی موقع پہ، جشن ولادت کے موقع پہ، ہم پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی عادت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، اور رسول کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے علماء دین آ کے تقاریر کرتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی خصوصیات کیا ہیں، آپ کے معجزات کیا ہیں، دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا، اپنی خصلتیں بتائیں، اس کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں میں۔ آپ کی سنت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے کس کس طرح عمل کرنا ہے، حضور پاک نے کس کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں، امت کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے تھے۔ قوم کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا بنی ہے۔ یہ آپ بتا سکتے ہیں ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں ربیع کا معنی آتا ہے کہ بہار کا موسم۔ جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے اس وقت موسم کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، بلکہ بہار کا موسم آتا ہے، فضا میں درختوں میں پھول کھل جاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ ربیع الاول کو ربیع الاول اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہار کا موسم ہے۔ ایکچوئل یہ حقیقت یہی ہے کہ عرب زبان کے اندر ربیع جو ہے ایسے موسم کو کہتے ہیں جس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، کونپلیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، پھول کھل رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ کوئی سے 3-4 نام تو بتا دیں پیارے آقا کے، اللہ پاک نے بڑے نام ارشاد فرمائے۔ محمد سب سے پیارا نام تو محمد ہی ہے۔ بے شک۔ احمد، جواد بھی آقا اسلام کے ناموں میں سے آتا ہے، مصطفیٰ، ہاشمی، محمود۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام بھی حاشر رکھا ہے، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ حاشر آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا، یہ اتنے پیارے نام ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے نام تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دعوت اسلامی نے بچے کو اس انداز میں سکھا دیے کہ شاید وہ بھلانا بھی چاہے تو نہ بھول سکے۔ احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاجلا سب سے آخری نبی، خاتم النبیین کن کا لقب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ لقب ہمارے پیارے آقا مدینہ علیہ مصطفیٰ میں لقب دیا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، قرآن شریف میں فرما دیا ہے، آخری نبی بھی آپ ہیں۔ اور یہ سرکار اسلام کا خاصہ ہے کہ آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ قرآن شریف میں جو فرما دیا گیا کہ سرکار اسلام آخری نبی ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद अब कोई इस दुनिया में नबी नहीं आएगा। मदीसन के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर नबी का दावा करेगा तो वो दावा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम अपने बच्चों का अकीदा जो है खातमुन नबीन के हवाले से किस तरह मजबूत कर सकते हैं? बच्चों को तो घर में ट्रेन कर सकते हैं ना। उसका ये है कि हम अपने छोटे बच्चों को पहली क्लास से ही बताया जाए। आज के दौर के अंदर मुख्तलिफ फितने पैदा हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा जो है सोशल मीडिया अब फ़ाल हो चुका है, इसलिए लोग बेलगाम हो चुके हैं, जिसके जो दिल में आता है हर चीज़ का दावा कर देता है। तो हमें अपने औलादों को, आने वाली नस्लों को ये बताना पड़ेगा। और आखिरी जश्न विलादत मनाते रहेंगे ना इंशाल्लाह, तो समझ लें कि ये टॉपिक हर साल रिन्यू होता रहेगा। हम, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, आने वाली नस्लें जब तक हर साल जश्न विलादत करेंगी तो उनको जो है रिमाइंड होता रहेगा और ये पता रहेगा कि जी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जश्न विलादत मना रहे हैं। तो सबसे आसान ज़रिया मैं समझता हूँ कि जश्न विलादत मनाते रहें। जश्न विलादत को मकसद किस तरह बना सकते हैं? जश्न विलादत के मौके पे हम किसी भी किस्म की किसी की मदद करते हैं। जैसे फ़ी ज़माना है, किसी के घर में गरीब है, राशन दिला दिया, तो ये भी जश्न विलादत की खुशी है। देखिए, खुशी के मनाने के तरीके बहुत हैं, बहुत सारे खुशी के मनाने के तरीके हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे, आपका दिल खुश होगा, वो भी एक अच्छी बात है, उसको भी मदद पहुंच जाएगी, आपके दिल को भी राहत होगी। आप चाहें किसी का ख़र्चा उठा लें, किसी बच्चे को अगर वो कमज़ोर है उसकी पढ़ाई का ख़र्चा उठा लें, उसको हाफिज़ बना दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तो ये मौके फ़राहम किए हुए हैं कि आप चाहें तो एक हाफिज़ का ख़र्चा उठा लें, आप चाहें एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाने का ख़र्चा उठा लें, मस्जिद बना सकते हैं, मस्जिद बनाने की नियत करें उस हवाले से कि आपको जश्न का मौका है, भाई मुझे खुशी हो रही है, तो खुशी में बंदा ऐसे काम भी करे जिसमें खुशी भी हो और सदक़ा जारिया भी हो। जी, जैसे कि मदनी चैनल के नाज़रीन अभी इन्होंने इरशाद फरमाया, जिस विलादत को हम बामकसद इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हम अच्छी सी नियत करें। अगर हमारे घर में कोई आलिम नहीं है तो हम आलिम बनाने की नियत करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे मदरसे में दाखिल नहीं है तो उसको मदरसे में दाखिल करवा के कुरान पाक का हाफिज बना सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। कई तरीके ऐसे हैं, मस्जिद बना सकते हैं, सुन्नतों पे अमल करके भी हम जश्न विलादत को मना सकते हैं, पक्की सच्ची तौबा कर कर भी हम जश्न विलादत मना सकते हैं। आपने बताया कि महफिल भी होती है और नाते भी पढ़ते हैं। आपको कोई दो शेर याद हो किसी नात के? मोहम्मद दर्जनो पा कोई नहीं सकदा, बशर अर्शितों पार जा कोई नहीं सकदा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। हो मुबारक अहले इसिया, हो गया बख्शिश का सामा, और आ गई सुबह बहारा, हो गया घर घर चरागा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मरहबा। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया, आ गए नबी आखिरी नबी। जश्न विलादत मनाने के हवाले से आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होती है? जब ये महीना आता है आप किस तरह मनाते हैं? इंशाअल्लाह बड़ी खुशी से बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए रहेगा ये, और आखिरी तक ये रहेगा 12 रबीउल अव्वल। ये रब और रब के हबीब का करम है कि हर साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा जोश व खरोश और जज्बात के साथ मनाई जाती है 12 रबीउल अव्वल, जिसमें एक सुन्नी जान माल और मेहनत से हर चीज़ में है ना आगे बढ़ के खुशियाँ मनाता है। कि लोगों में जोश व खरोश इसलिए बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है और मिलादत ता हयात बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जोश और जज्बात तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है हमारे अवाम में, लेकिन जो मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं और जो दूसरे मामलात होते हैं उसके दुरुस्तगी का हमें ख्याल रखना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करके मनाना चाहिए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी उसके हिसाब से।
और हम जो ये खराफात हो जाती है ना, वो उससे हमें बचना चाहिए। बचना चाहिए। खराफात से मुराद खराफात से मुराद ये जो लेडीज़ को निकालना बाहर, चीज़ें जो ये फेंकते हैं लोगों के अंदर बीच में, जिससे जो है ना क्या कहते हैं बदनज़मी पैदा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आप 100-150 की एक झालर आती है, आप एक गैली में लगा लो, जरूरी से है कि चाकला सी सज रहे। 150 में कुछ भी नहीं जाएगा। एक गैली सजा देवे, एक झालर लगा लेवे, तो इंशाल्लाह एक झंडा लगा लेवे, तो माशाल्लाह देखो कितनी मतलब बाहर है और रौनक आती है। ये जो चिरागन करते हैं और ये जो जश्न मनाते हैं, इसका हमारी आने वाली नस्ल के ऊपर क्या असर पड़ता है? जश्न करना, चरागा मनाना और अपने वैसन तरीके से करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चले भाई जब कोई लाइट होती है, कोई या कुछ रोशनी नजर आती है, लोग पूछते क्यों है, तो बच्चों को बताया जाता है कि ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, उनका दिन है, और हमारे खातमुन नबी के विलादत का महीना चल रहा है, इसलिए हम ये विलादत मना रहे हैं। और लोगों को पता चलता है, दुनिया में लोग देखते हैं कि हमारे आशिक रसूल कितने हैं माशाल्लाह, कि वो हमारे नबी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चरागा करें, लेकिन वही बात वही कि हमें दूसरे मामलात का भी ख्याल रखना चाहिए, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का रास्ता ना रुके, किसी की हक तलफी ना हो। हमें इस महीने में नियत तो ये करनी चाहिए खुसूसन कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जश्न यही है सबसे बड़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया उस पर अमल करें, कुरान मजीद फुरकान हमीद की पढ़ने की पूरी कोशिश करें। अगर हमें नहीं आता तो हम दावत इस्लामी के तहत या गालगान लगते हैं, उसके अंदर जाएं, कुरान शरीफ सीखें, पढ़ें, और कोशिश करें कि जितना दीन के मुताबिक जश्न मनाए इतना अच्छा है। बुजुर्ग भाई फरमा रहे हैं कि हमें जश्न मिलाद कैसे मनाना चाहिए। भाई यूँ भी मना सकते हैं कि हम इस महीने के अंदर रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ें, बल्कि अपना मामूल बना लें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, उनकी ज़ात मुबारक पर कम से कम रोजाना 313 बार दुरूद पाक पढ़ें। अपने बच्चों को जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना में दाखिला दिलवाएं, किसी गरीब की मदद कर दें। तो इस तरह भी हम यौम विलादत मना सकते हैं। और हमारे लिए ये यादगारी दिन है 12 दिन। जो 12 रबीउल अव्वल आती है उसका तो जश्न ही अलग होता है, उसका शमा ही अलग होता है। दिल में जोश व खरोश ऐसा होता है कि काश हम उनको देख लेते। आप मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे जश्न विलादत की महफिल से जाते वक्त, चरागा करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? चरागा करते वक्त एक तो ये कि बिजली अपनी ज़ाती इस्तेमाल की जाए, कि कुंडे वगैरह इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये जो मुस्तहब अमल है हमारे लिए बाइस से गुनाह ना बन जाए। तो कोशिश ये की जाए, और दूसरे ऐसे महफिल की जाए जिसमें किसी को इंसान को तकलीफ़ ना हो। नात ख़वानी करें तो आवाज़ इतनी ऊंची ना हो कि लोगों को परेशानी हो, कि जो डिस्टर्ब हो, क्योंकि हुकूक़ की बात भी हमारे नज़दीक बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बेशक बेशक। मदनी चैनल के नाज़रीन, यही तरबियत हमारी ज़ात-ए-इस्लामी हमें जो है दे रही है, और अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया भी इस चीज़ का एहसास रखते हैं और दर्द रखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत मनाते वक्त किसी की हक तलफी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ईज़ा ना पहुँचे, क्योंकि ये मुस्तहब अमल है और हम कहीं गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाएं। अल्लाह पाक हमें अब इन बातों का ख्याल करते हुए जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता फरमाए। हम तो रबीउल अव्वल को इस तरीके से मनाएं कि आका हमारे खुश हो जाएं हमसे। आमीन आमीन। हमारी नमाजें, हमारी कुरान, हमारा बड़ों का अदब, माँ बाप की खिदमत, बड़ों का अदब एहतराम, बच्चों से मोहब्बत, प्यार, शफकत, ये हमारे दिल में आ जाए। ये हमारे अंदर, आजकल लोग नफ्सा नफसी में लोग फंसे पड़े, हर किसी एक दूसरे के अंदर चिड़चिड़ापन लगा हुआ है, एक दूसरे को बुराइयों में लगे हुए हैं, गीबतों में लगे हुए हैं बस। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप ये माहौल दीनी अपना लें, मैं कहता हूँ इनकी किस्मत भी जाग जाएगी, इनके वालिदैन की भी किस्मत जाग जाएगी, वो भी नसीब इनके भी भाग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ख़यानत नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और गीबत नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो यूँ अल्लाह ने चाहा तो माह मिलाद को हम बामकसद बना सकते हैं। अल्लाह पाक हमें बामकसद माह मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से 3 नाम। अव्वल मोहम्मद, अहमद और मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा है, आशिर है। हमारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आप ये बताइएगा, हमारा अकीदा खातमुन नबीन के हवाले से क्या होना चाहिए? अकीदे ख़त्म नबूवत के बारे में जितना हम इसको आम करें ना, मतलब असल में आपके अंदर तो है लेकिन इसको बाहर वाज़े करना पड़ेगा।
कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज ना भी हो रही हो ना, हमारी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जो इसको जारी वो सारी रखना चाहिए खत्म नबूवत को। मतलब यहाँ तक भी होना चाहिए कि जब हमारा कोई प्रोग्राम भी कोई दीनी भी हो ना, तो इसके आखिर का कुछ हिस्सा या 5 या 10 मिनट खत्म नबूवत के बारे में लोगों को आगाही, उसकी याद दहानी करवाना जरूरी। एक हजरत साहब का नारा जो है वो बड़ा पसंदीदा है मुझे, हर साहबी नबी जन्नती जन्नत है, अकीदा अत्तार का सबसे आखिरी नबी। घर में हमको है ना वक्तन व वफ़क्तन है ना इनके बिठा के इनको समझाना है, उनको बताना है कि हमारे असलाफ ने इन खत्म नबूवत की है ना पहरेदारी के लिए किस तरह कुर्बानियाँ दी और आइंदा हमको किस तरह इसको है ना पहरेदारी देनी है, पासदारी करनी है। बेशक, और इनको हम मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे उलमा किराम के इज्तिमात में लेके जाना, उनको बयानात उनके सुनाना, खास तौर पे दरूद शरीफ के ख़त्म के लिए है ना एहतमाम किया जाए। इनको घर में बैठ के समझाना पड़ेगा, इसकी तालीम देनी पड़ेगी हमको, और हमें मेहनत करनी पड़ेगी इनको बच्चों के पीछे। आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनको भी यही बताते हैं कि इनके बाद कोई नबी नहीं है। यही है कि हम जो अमल करें हम अपने बच्चों को उसको ट्रांसफ़र करते रहें, उनको दिखाते रहें कि देखें ये है, इस तरह ख़ातमुन नबी हैं हमारे, उसके ऊपर अक़ीदा हमें उनको समझाना पड़ेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में। अगर इनको समझा दिया तो ये अपनी आने वाली नस्लों को भी समझा सकते हैं कि हमारे आबा उजदाद ने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, आप भी यही करना है। कोई एक शेर जो आपको याद हो। आओ आला हमारा नबी सबसे बाला हो, आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी से औला हो, आला हमारा नबी। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सम है बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इस रूहानी घड़ी चमका तैबा का जाम, रूहानी घड़ी चमका तैबा का जाम, अफरोज़ शाद पे लाखों सलाम। ये सोने वाले जाग जरा, तकदीर बदलने वाली है, सदके में मोहम्मद के नेमत बढ़ने वाली है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो ना कोई ईद होती, ना कोई शब बरात होती। कोनो मकान की सारी रौनक व शान अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल का सदका है। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ख़ुसूसी सिलसिला इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपसे फिर मिलेंगे और नई गुफ्तगू और नए सवालात के साथ। मदनी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात गए नेमत खुदा की जान लो, कर लो इल्म नेकियां जन्नत का यूं सामान लो।